Hello, dosto. How are you all? Hope you are all very good. And this is Anuj, and today I'm going to have a very small discussion. And this discussion is pertaining to the amendment which has been made by the Insolvency and Bankruptcy Board of India, while its notification dated 28th of January 2025. Dear friends, amendment is very small but very relevant because this amendment is going to applicable with effect from 28th of January 2025. So let's have a look at the amendment which has been made by the Insolvency and Bankruptcy Board of India. So as you can check out on my screen, that Insolvency and Bankruptcy Board of India notifications, New Delhi, the 28th of January 2025, राइट. सो ये सर्कुल जो नोटिफिकेशन है बीबीआई ने 28th ऑफ जनवरी 2025 को इशू की थी. एंड ये जो अमेंडमेंट है किस रेगुलेशंस में लाया गया है उसको देखते हैं. तो जो ये अमेंडमेंट लाया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ब्रैकेट के अंदर है मॉडल बाई लॉज एंड गवर्निंग बोर्ड फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025. सो इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं कि देखो आईपीए क्या होता है. यू ऑल आर वेरी मच अवेयर दैट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, अभी करेंटली three IPAs are existing in our countries. One is CA Institute's IPA, and other one is CS Institute constituted one IPAs, and third one is CMA Institute has is having one IPA. So both the three professionals institutes of our country have duly incorporated one insolvency professional agencies. In short हम लोग उसको IPA कहते हैं, ठीक है. And the main purpose of IPA is to governing the its member means the members who is having रजिस्ट्रेशन विथ सच IPAs. सो उनको गवर्न करना, उनके वर्किंग को मॉनिटर करना, उनके वर्किंग को सुपरवाइज करना, उनके जो वर्किंग है उनको इंस्पेक्ट करना. सो they are functioning as per the requirement of the Insolvency and Bankruptcy Code. So for that, Insolvency and Bankruptcy Board of India uh, uh, placed one regulations which is known as the IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India, model by laws and governing board of insolvency professional agency. Basically these regulations has been brought in 2016 itself, but this amendment will be called Insolvency and Bankruptcy Board of India model bylaws governing board insolvency professional agencies amendment regulation 2025. सो ये अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 होगा. आईबीबीआई की मॉडल बाईलॉज governing board of insolvency professional agencies amendment regulation 2025. Regulation name is quite old but don't worry, you will get it. And तो ये बेसिकली इस रेगुलेशंस में अमेंडमेंट किया जा रहा है. अमेंडमेंट कोई खास नहीं है, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, बहुत रेलिवेंट है ना. बड़ी अमेंडमेंट नहीं है बट इसकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है. सो नाउ let's have a look at file number IBBI slash 2024 dash 2025 slash GNREG 117. so this is the number. and इसमें यही बताया गया है कि जो सेक्शन 196 है IBC का, सेक्शन 204 रीड विथ सेक्शन 205 रीड विथ सेक्शन 2040 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India, right? And India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India model by laws and governing board of insolvency professional agency regulation 2016 को. So ऑल दीज सेक्शंस जो यहाँ पे मेंशन की गई है, उस सेक्शंस के तहत जो आईबीबीआई ने क्या किया है कि जो मॉडल लॉज है, मॉडल बाई लॉज है फॉर गवर्निंग द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज रेगुलेशन 2016, क्योंकि 2016 के इनिशियल रेगुलेशन है उसमें जो चेंजेस लाया जा रहा है पर्टेनिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 196 204 205 रेड विद सेक्शन 2040
ठीक है. So these are the enabling sections by virtue of which the Insolvency and Bankruptcy Board of India brought these notifications pertaining to the amendment in the said regulations, right? तो this one is not too much हमारे लिए कुछ ज़्यादा relevant है नहीं, because ये तो IBBI की पावर जिसके थ्रू ये अमेंडमेंट को लाया गया है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट क्लॉजेस ऑफ दिस अमेंडेड रेगुलेशन. सो इसमें क्या बताया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं. एंड इसमें कहा गया है कि दीज रेगुलेशंस में बी कॉल्ड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ब्रैकेट के अंदर मॉडल बाई लॉज गवर्निंग द बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2005 राइट. सो इस रेगुलेशन को हम लोग इस नेम से जानेंगे. सेकेंड क्लॉजेज जो इस अमेंडमेंट की है उसमें है, दे शेल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट. जैसे ही इसे ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा उस डेट से इस अमेंडमेंट को नोटिफाई कर दिया जाएगा. तो वी विल हैव टू चेक आउट दैट कि हाँ इसे ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किया गया है या नहीं किया गया है ना. तो जो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट will be the effective date of implementation of this notification. So it's not a worry, जब भी notification publish किया जाएगा उस दिन से effective हो जाएगा. now जो हमारा ये है इस amended regulations की clause 1 के अंदर सब क्लॉज 1 and 2 हमने देख लिया कि किस इस रेगुलेशन को किस नेम से जाना जाएगा और इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगा, राइट. तो इफेक्टिव डेट जो होगी ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन की डेट होगी, है ना. और अब जो क्लॉज 2 है इस कह सकते हो नोटिफिकेशन का, वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि बेसिकली ये अमेंडमेंट है क्या. गाइस इस अमेंडमेंट को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ जिक्र करूँगा जो कि आप लोगों को एक बेस बना करके देगा कि होता क्या है. आप लोग को पता है कि कोई भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर कोई भी असाइनमेंट तब तक नहीं ले सकता जब तक कि उनके पास एक वैलिड AFA हो. AFA दिस वन इज कह सकते हो कि एक आपके पास अथॉरिटी देती है असाइनमेंट को अवेल करने के लिए, असाइनमेंट को उठाने के लिए IBC के अंदर. यदि आपके पास AFA नहीं है, दैट इज़ ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट, ये यदि ऑथराइजेशन आपके पास नहीं है या फिर आपकी जो ऑथराइजेशंस हैं वो एक्सपायर कर गई है, तो आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा. जब तक आप रिन्यू नहीं करवाएंगे फ्रेश असाइनमेंट्स आप नहीं ले सकते हैं. इसलिए होता क्या है कि ये जो AFA की वैलिडिटी होती है 1 साल होती है, जब भी आप इसको रिन्यू करवाएंगे वहाँ से इसकी जो वैलिडिटी आपको मिलेगा फॉर 1 ईयर होगा. एंड आफ्टर 1 ईयर यू नीड टू जस्ट गो अप्लाई फॉर द रिन्यूअल ऑफ दिस AFA. अब जब आप इसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं तो ये कहाँ पे जाता है एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आपके IPA के पास जाती है. IPA जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, उनके पास वो एप्लीकेशन जाएगा. अब वो एप्लीकेशन की थ्रोली कह सकते हो कि स्क्रूटनी की जाएगी. किसके द्वारा? IPA के द्वारा. IPA के द्वारा ये चीज़ देखा जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने जितने भी असाइनमेंट्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर एग्जीक्यूट किए हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या उस असाइनमेंट्स की कोई नॉन कंप्लाइंसेस तो नहीं है, क्या आपके ऊपर कोई इंस्पेक्शंस तो नहीं चल रही है, क्या आपने कोई वायलेशन तो नहीं किया है, क्या आपने कोई ऐसे फॉर्म्स जो सबमिट करना था वो तो सबमिट नहीं किया है. तमाम चीज़ों को आपको क्या है वो स्क्रूटनी की जाएगी और स्क्रूटनी IPA एजेंसीज के द्वारा किया जाएगा. वाइल इन द कोर्स ऑफ स्क्रूटनी इफ देयर इज एनी कह सकते हो लू फॉल्स और any non-compliances or any shortcomings in your working, then IPA shall notify you and you will have to just respond to those queries. और कह सकते हो कि जो भी वहाँ पे उनकी पॉइंट्स आती है, ऑब्जर्वेशंस आती हैं, वो आपसे क्लियरली पूछा जाएगा. एंड नाउ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल shall resolve all those queries within the stipulated time, right. And if the IPA is fully satisfied that everything is okay, then your AFA shall be renewed.
बट गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एफए एक्सपायर करने से पहले हमें कितने दिन पहले एप्लीकेशन जो होती है रिन्यूएबल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज सडनली कल हमारा एफए रिन्यू हो रहा और आज हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, तो इट्स वेरी मच difficult for the IPA to just renew those AFA. So there is certain timelines. उस टाइमलाइन में आपको अप्लाई करने हैं एंड उसके बाद आपको सर्टेन टाइमलाइन के अंदर वो आपको क्या है एफए को रिन्यू किया जाएगा। तो गाइज ये था कि जब भी आपके एफए जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो ये है कि एफए एक्सपायरी से पहले 45 डेज नॉट जो 45 दिन पहले आपको क्या करना है अप्लाई करना होता था। कि जैसे ही आपका सपोज करो कि आज आपकी एफए रिन्यू हो रही है एज ऑन 6 February एफए रिन्यू हो रही है, तो आज से 45 दिन पहले आप एफए के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देते थे, ठीक है। और जब आप जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें बताया क्या गया है कि इसको देख लेते हैं, जनरल बातें तो हम लोग कर लिए कि 45 दिन पहले हमें हमारे को अप्लाई करना होता था और 15 डेज के अंदर एफए को रिन्यू कर दिया जाता था आईपीए के द्वारा। जब आपने एप्लीकेशन लगाया, ओल्ड जो स्ट्रक्चर है हमारा ये है कि आपको 45 दिन पहले एप्लीकेशन लगाना है और एप्लीकेशन लगाने के बाद 15 दिन के अंदर आपको क्या करेंगे जो 15 डेज और 45 दिन पहले आपने लगा दिया एंड उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको इशू कर दिया जाता था, ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता था, जो भी होता था वो हो जाती थी आईपी के द्वारा। तो दिस वाज अवर ओल्ड स्ट्रक्चर, बट नए स्ट्रक्चर्स में हमारा कुछ चेंजेस लेकर के आया गया है। न्यू स्ट्रक्चर में जो चेंजेस लाया गया है ये है कि आप 45 दिन की जगह पे आप 90 डेज पहले एप्लीकेशन लगाओगे, है ना, एंड 90 डेज पहले आप एप्लीकेशन लगाओगे एंड 90 डेज के अंदर ही क्या है वो आपको या तो रिन्यू कर दिया जाएगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द अमेंडमेंट। 45 दिन था बिफोर 45 डेज ऑफ एक्सपायरी यू आर सपोज टू अप्लाई फॉर द रिन्यूअल and within 15 days after the your application for renewal, IP used to just verify each and every aspects and renew your FA और reject your FA। जो भी होता था तो या तो रिन्यू कर दिया जाता था, रिजेक्ट कर दिया जाता था, जो भी होता था 15 दिन में उनको रिजॉल्व करना होता था। बट ये प्रोसेस इतना ज़्यादा कम्बर्शन हो गया था, डिफ़िकल्ट हो गया था, बिकॉज इतने कम समय में एएफए को रिन्यू करना, जो क्वेरीज होता था उसको रिजॉल्व करना वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि 15 दिन का टाइम जो है, खास करके चलो 45 दिन पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अप्लाई कर दिए वो तो कोई बड़ी बिग डील नहीं है, बट 15 दिन के अंदर जो एप्लीकेशंस आईपीए के पास जाते थे उसको डिस्पोजल कर पाना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बिकॉज 15 दिन में आप किसी भी आईपी की जो है वो क्या कंप्लाइंसेस किया है, इतने 10-10 20-20 असाइनमेंट्स होते हैं एक एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के, सारे कंप्लाइंसेस को थ्रोली स्क्रूटनी करना और उसको पता लगाना कि क्या कंप्लाइंसेस हुई है क्या कंप्लाइंसेस नहीं हुई है। तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट काम था आईपीए को लेकर के, और एप्लीकेशन भी बल्क में आते हैं, तो थिंग्स वर वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर द आईपीए। सो इट वाज फेल्ट कि अमेंडमेंट तो इसमें लाना चाहिए। सो अब क्या कर दिया, आईपी के लिए भी टाइम दे दिया कि आपकी जो एफए जिस भी दिन पे एक्सपायर होगी उस दिन से 90 डेज पहले आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपके जो मैक्सिमम टाइम लाइन है 90 दिन पहले अप्लाई कर सकते हो। चलो आपने बाद में किया तो कर सकते हो, बट कोई इशू नहीं है। बट 90 डेज बैक फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी यू कैन गो फॉर द रिन्यूएबल एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। अब 15 डेज के अंदर जो आपको आईपीए को रिवर्ट करना होता था वो 90 डेज हो गया। और ये जो बेसिकली चेंजेस आया है वो कहाँ आया है, किस रेगुलेशन में आया है, वो भी आप लोग देखिए इसको। ये जो चेंजेस ब्रॉड की गई है इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ब्रैकेट के अंदर मॉडल बाई लॉज एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज रेगुलेशन 2016 इन शेड्यूल इन पैरा नंबर 6 इन क्लॉज नंबर 12। तो गाइज अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे
कि हम लोग इस रेगुलेशन के शेड्यूल में चलेंगे। ठीक है, शेड्यूल में जा कर के हमारे को क्या यहाँ पे जाना है, पैरा 6 में जाएंगे, और पैरा 6 की जो हमारा क्लॉजेज हैं, क्लॉज 3 में जाएंगे एंड क्लॉज 5 में जाएंगे। तो लेट्स हैव अ लुक, इसको एक बारी हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या है ना। ये हमने प्रोविजन तो पढ़ लिया, इसको एक बारी चेक करते हैं। तो लेट्स हैव ऑन द लुक। अब देखो हम लोग इस शेड्यूल में आ गए हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये शेड्यूल की जो पैरा नंबर है, दिस पैरा नंबर इज प्रोफेशनल मेंबरशिप, है ना। आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा ये प्रोफेशनल मेंबरशिप। इस पे हम लोग, मैंने ऑनलाइन ओपन कर रखा है, तो आई कैन नॉट हैव एनी टेक्स्ट ऑन दिस पीडीएफ बिकॉज मैंने ऑनलाइन कर ओपन कर रखा है। सो आप 6 में देख पा रहे होंगे प्रोफेशनल मेंबरशिप, और इसी प्रोफेशनल मेंबरशिप की जो हमारा क्लॉज नंबर 12A है, ये 12 हो गया, एंड दिस वन इज 12A। और इस 12A के अंदर जो सब क्लॉजेस, ये आप जूम करके मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने एरिया वो कर रखा है, इसमें ही अमेंडमेंट ये जो लेके आया गया है। इसमें आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो डेट लिखा हुआ है, इस क्लॉज जो प्रोवाइजो है इसमें है। तो मैं पूरा आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। एन एप्लीकेशन फॉर इशू और रिन्यूअल ऑफ ऑथराइजेशन for assignment shall be in such a form, manner and with such fee as may be provided by the agencies। चलो ये तो बताया जा रहा है कि उस मैनर में होगा, उस फॉर्म में होगा, उस अलॉन्ग विथ फीस के साथ होगा, जो कि आईपीए ने प्रोवाइड कर रखा है, राइट। अब प्रोवाइजो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट है ना, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल of authorizations for assignment shall be made any time before the date of expiry of the authorizations, but not earlier than 45 days before the date of expiry of the authorizations। तो गाइज ये जो 45 डेज है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इस 45 डेज की जगह पे 45 डेज की जगह पे कर दी गई है 90 डेज, है ना। ये 45 डेज की जगह पे इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 90 डेज, कि आप 90 डेज से पहले नहीं अप्लाई कर सकते, है ना। 90 डेज से पहले आप कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, बट 90 दिन से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये हमारा अमेंडमेंट ये हो गया। आई होप कि इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है। पहले हम लोग 45 दिन पहले कर सकते थे, बट अब 90 दिन कर सकते हैं। अब कोई कहे कि 120 दिन पहले हम लोग कर सकते हैं क्या, तो नहीं गाइस, आपके पास जो मैक्सिमम टाइम लाइन है जिसके पहले आप कर सकते हो, तो वो 90 डेज है। 90 डेज से पहले आप नहीं कर सकते। क्या 90 डेज के बाद भी कर सकते हैं? यस। यदि डेज आपका 50 भी बचे हुए हैं एक्सपायरी से, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट नॉट अर्लियर देन 90 डेज आप नहीं कर सकते। पहले 45 डेज हुआ करता था, अब 90 डेज बढ़ा करके कर दिया। और नाउ इसमें जो है सब क्लॉज 5 के अंदर भी थोड़ा सा चेंज लाया गया है। इसमें चेंज के लाया गया है, इसमें ये प्रोवाइजो में ना ला करके ये जो क्लॉज है 5 इसी में ही लाया गया है। इसमें ये देखो, आप देख पा रहे होंगे, इफ द ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट इज नॉट इशूड, रिन्यूड, रिजेक्टेड बाय द एजेंसी विद इन 15 days of the date of the receipt of the application, the authorization shall be deemed to have been issued or renewed as the case may be। इशूड माना जाता था 15 दिन के अंदर, या तो आप उसको इशू कर दो या फिर रिजेक्ट कर दो, मतलब आईपीए के द्वारा कोई एक्शन ली जानी चाहिए होती थी 15 दिन के अंदर। अब 15 दिन के अंदर नहीं, यदि कोई एक्शन लिया जाता है एप्लीकेशन पे, कुछ ना तो वो आईपीए देखती है, रिन्यू करती है, ना ही रिजेक्ट करती, तो माना जाएगा कि डीम्ड ग्रांट, मतलब एफए को रिन्यू कर दिया गया है। नाउ इस टाइम को बढ़ा करके 15 दिन को 90 डेज कर दिया गया है। यदि आईपीए एजेंसी 90 डेज के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेती है, इधर रिन्यू नहीं करती है या फिर उसको रिजेक्ट नहीं करती है, तो माना जाएगा कि एफए को डीम्ड रिन्यूएबल मिल गई है। सो गाइज, ये हमारा था अमेंडमेंट इन आईबीबीआई बाई मॉडल लॉज ऑफ गवर्निंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। होप कि ये अमेंडमेंट, छोटा सा अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट थी, बट रेलिवेंस बहुत ज़्यादा था। ठीक है गाइस, होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना करके नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, बट मैं आप लोगों को ऐसे ही जो अमेंडमेंट आया उसके ऊपर सोचा कि